हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं आजकल के सोशल मीडिया वर्ल्ड में दे बेसिकली गेट लॉस्ट बिटवीन नॉइज एंड सिग्नल कि क्या नॉइज है और क्या सिग्नल है। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक पीटर लिंच की छोटी सी वीडियो देखते हैं और इस वीडियो में देखते हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। Okay, now we get to the important stuff. There's always something to worry about. This is the difference. This is what happens in the stock market. Because, see, everybody's got the brain power to do well in the stock market. The question is whether you have the stomach for it. That's the key organ in the body. There's always something to worry about. I went to school, grew up with a kid in the 50s. In the decade of the 50s, there's this big theory that the Depression was caused by a stock market crash. Totally wrong. Less than 1% of Americans own stocks in 29. We had this big-time recession. In fact, it was a depression. It wasn't caused by the stock market. The economy went down, the Federal Reserve raised interest rates, and we had a big-time depression. In fact, we had several depressions like that from 1850 on. This was only one of about 8 depressions since 1850. But people thought the only reason we got out of the depression was World War II, and they said once we get back, next time we have a recession, we're going to have a depression. And it's going to be a great depression. I never understood that adjective in front of depression. Now, it ought to be crummy depression, bad depression, but it was a great depression. I never quite understood that one. So people weren't buying stocks in the 50s because they thought that another great depression was going to happen. In addition, people were very scared about nuclear warheads and nuclear war in the 50s. People were building fallout shelters, stocking with canned goods. There's something about going to Vermont, building a fallout shelter, putting canned goods in it, that you don't buy Minnesota Mining or you don't buy East Dakota. I mean, the syllogism just doesn't work out that you're buying lots of water, buying a shotgun, buying frozen food that will stay in the freezer with your own generator, and you're looking at growth stocks. Doesn't seem to work out that way, you know. And I remember in the 50s, I remember literally in classes, I was in elementary school in the 50s, and they would come in, they'd have one of these air raid drills. Somebody with a yellow hat would come in, they'd blow a whistle, and you'd get under your desk. Even then I says, I don't think this is going to do a lot of good. You know, but people were worried about a depression and nuclear war in the 50s. सो इस वीडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि देयर इज ऑलवेज समथिंग टू वरी अबाउट। तो इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी की हम लोग बहुत कम वीडियोस बनाते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट वीडियोस टुडे बिकॉज देयर इज ऑलवेज समथिंग टू वरी अबाउट। क्या क्या टू वरी अबाउट है? 2024 के अंदर जनरल इलेक्शंस है। क्या आएगा अगर गवर्नमेंट नहीं आई पावर में? क्या आएगा अगर गवर्नमेंट आ गई पावर में? एंड द फनी थिंग इज इवन द पॉलिटिशियंस आर वरीड अबाउट द मार्केट्स बिकॉज वो भी मार्केट्स की प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। सिमिलरली एग्जाम्पल लेंगे, जो ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स इस टाइम पे क्या करें? दे आर गिविंग पिन बाय पिन या पॉइंट बाय पॉइंट सीट प्रेडिक्शंस कि किसकी कितनी सीट आएगी। एंड लास्ट आई थॉट कि जो ब्रोकरेजेस हैं देयर पर्पस इज टू एनालाइज बिजनेसेस। देन अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो 2023-2024 में क्या वरीज थी कि यूक्रेन और रशिया की वॉर होगी। तो अगर लाइक इफ रशिया अटैक्स यूक्रेन, अगर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हो जाते हैं तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। देन क्या वरीज हुई? फिर वरीज स्टार्ट हुई कि इसराइल और ईरान की वॉर हो गई है, तो जिसके चक्कर स्टॉक मार्केट्स गिरने लग जाएंगी। देन 2022 के अंदर क्या वरीज हुई कि यूएस शायद से रिसेशन में चले जाएगा, वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है जो आज भी उस टाइम से बढ़ रखी है। देन 2021 के अंदर क्या वरी हुई कि वर्ल्ड अभी कोविड से बाहर आया है, तो क्या इकोनॉमी के अंदर इतनी रिकवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। फिर 2020 के अंदर क्या वरी हुई, क्या 2020 के अंदर क्या हुआ कि कोविड नाम की बीमारी आई एंड लोगों ने बोला कि अब मार्केट्स तो यहाँ से ख़त्म। लाइक आई थिंक जब निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरा था 23 मार्च की वो डेट थी, मेरे को आज भी याद है कि मेरे घर पे ही लोग बहुत ज़्यादा मुझसे पूछने लग गए थे कि अब क्या करें स्टॉक मार्केट्स में, अब सब कुछ बेच के अपना निकाल लेना चाहिए। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड इज कि देर विल बी ऑलवेज समथिंग टू वरी अबाउट। 2017-2018 में क्या हुआ? IL&FS क्राइसिस आया। 2016 में क्या हुआ? डिमोनेटाइजेशन हुई। 2012-2013 में क्या हुआ? टेपर टैंट्रम हुआ। 2008 में क्या हुआ? लाइक जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है वो हुआ। सो देर आर सो मैनी सच इवेंट्स विच कीप हैपनिंग। बीच बीच में जो नॉर्थ कोरिया वाला है वो भी लोग एकदम डर जाते हैं कि नॉर्थ कोरिया वाला दुनिया को खत्म कर देगा न्यूक्लियर मिसाइल मार के, राइट। सो idea to understand is that as a retail investor, these are worries that you should do away with. Why so? Because there are two types of things. First type of things are things that you can control, and second type of things are things that you cannot control. Things you can control में क्या रहता है कि the valuations that you pay for a particular stock. कि आप एक स्टॉक के लिए क्या वैल्यूएशंस पे कर रहे हैं या उस टाइम पे मार्केट की वैल्यूएशंस क्या चल रही है। जैसे अगर आज हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 21 टाइम्स की पी रेशियो पे चल रही है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 27 टाइम्स की पी रेशियो पे चल रहा है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इस टाइम पे ऑलमोस्ट 24.4 टाइम्स की पी रेशियो पे चल रहा है।
तो idea to understand is that this is the starting multiples of the market. You can't change the fact कि निफ्टी आज एवरेज पी वैल्यूएशन पे चल रही है, या निफ्टी स्मॉल कैप 250 में अगर ग्रोथ कंटिन्यू करती है तो शायद से वैल्यूएशन मल्टीपल्स एलिवेटेड रहे. बट दिस इज द फैक्ट कि दिस इज व्हाट यू कैन कंट्रोल, कि आप एक मल्टीपल्स पे आप एक मल्टीपल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. सेकेंड फैक्ट आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किस टाइप का बिजनेस ले रहे हैं या आप किस टाइप के सेक्टर में जा रहे हैं. जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, तो मैं अपने एग्जाम्पल में जैसे मैं एक ज्वेलरी रिटेल कंपनी को खरीद रहा हूँ, राइट. तो ज्वेलरी रिटेल की कंपनी आज मेरे को 30 की या 35 की पी पे मिल रही है और वहाँ पे 25-30% की ग्रोथ है. तो यहाँ पे मैं क्या सोचूंगा कि वेदर देर इज अ ट्रेंड दैट इज इंटैक्ट, कि ज्वेलरी अगर आज हम इंडस्ट्री में देखते हैं तो नियरली 40% इंडस्ट्री सिर्फ ऑर्गेनाइज है और 60% अनऑर्गेनाइज है. एंड एक टाइम पे क्या होता था कि नियरली सिर्फ 5% इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज होती थी और 95% अनऑर्गेनाइज होती थी. तो दिस इज अ ट्रेंड दैट इज हैपेंड ओवर द लास्ट 2 decades. तो मैं क्या सोचूंगा टैम के ऊपर या टोटल एड्रेसेबल मार्केट में कि इस इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन और जो मैं कंपनी ले रहा हूँ क्या वो अच्छा करेगी या नहीं करेगी, एंड उस कंपनी की गाइडेंस क्या है. तो वो कंपनी आज भी 20% ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन की गाइडेंस दे रही है. सो कि दैट इज अ फैक्ट आई कैन कंट्रोल. आई कांट कंट्रोल द फैक्ट कि गोल्ड के प्राइस ऊपर नीचे जा रहे हैं. दैट इज द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, बिकॉज पीपल गेट इन टू दिस क्वार्टरली गेम्स और लाइक मतलब आजकल कंपनीज भी मंथली अपडेट्स देने लगी है. पीपल गेट इन टू दिस क्वार्टरली गेम्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, राइट. समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल. थर्डली मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ कि जो भी मैं कंपनीज लेके बैठा हुआ हूँ मैं उनका स्टेज एनालिसिस कर सकता हूँ, क्या जो स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में है, स्टेज 3 में है, स्टेज 4 में है. एंड फाइनली मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरा एंट्री पॉइंट, मेरा राइडिंग सिस्टम एंड मेरा एग्जिट सिस्टम. ये सारी चीज़ें हम SOIC मेंबरशिप में भी सिखाते हैं. बट एंट्री पॉइंट्स यूजली अगर कोई बिजनेस का वैल्यूएशन चीप है एंड टेक्निकल्स के अंदर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, दैट इज यूजली द एंट्री पॉइंट. या फिर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आ रहा है, सो दैट इज वन ऑफ द एंट्री पॉइंट्स, राइट. अगर यहाँ तो वैल्यूएशन इतना सस्ता है कि आपको टेक्निकल्स पे दिमाग ही नहीं लगाना, दैट बिकम्स एन एंट्री पॉइंट. राइडिंग पॉइंट क्या रहता है कि एज लॉन्ग एज द ट्रेंड इज इंटैक्ट, दैट इज वन ऑफ द आइडियाज टू कीप राइडिंग इट. या फिर आपने कोई बिजनेस ही ऐसा लिया जो आप 4-5 साल के लिए जिस पे बैठना चाहते हैं, so that is also one of the criteria that you keep riding the stock because your time horizon is such you're willing to give it a loser rope. Exit pointers क्या होते हैं कि जिस रीजन से मैंने स्टॉक लिया था, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं मैंने कोई ज्वेलरी रिटेल बिजनेस लिया और उसमें मेरी थॉट प्रोसेस है कि वो 20-25% की ग्रोथ आएगी एंड उसमें मार्जिन एक्सपेंशन होना चाहिए नेक्स्ट 1 ईयर में, एंड ओवर 2-3 years दैट बिजनेस शुड डू वेल. अगर 20-25% ग्रोथ नहीं आती, अगर 5-10% ग्रोथ आती है तो मैं ग्रोथ पे रॉन्ग जा रहा हूँ. सेकेंडली मैं कहाँ रॉन्ग जा रहा हूँ, अगर उस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत बढ़ गया जिसकी वजह से मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन होने लगी, सो देयर आई कैन गो रॉन्ग. थर्डली मैं कहाँ रॉन्ग हो सकता हूँ कि अगर वो स्टॉक के अंदर स्टेज 4 स्टार्ट हो गया, लाइक द स्टॉक स्टार्ट्स फॉलिंग goes below 30 weekly exponential moving average and basically starts falling at very high volumes, so that is also one of the exit pointers, right. पर मैं यही चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ एज एन इन्वेस्टर. एंड फाइनली मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, दैट इज साइजिंग है खास, बाकी सब बकवास. दैट आई कैन एक्चुअली मैनेज टू कंट्रोल माई रिस्क बाय माई पोजिशन साइजिंग. अगर मैं पोजिशन साइजिंग के थ्रू अपने रिस्क को कंट्रोल कर लूँ, सो देर इज नथिंग लाइक दैट. देर विल बी सम कंपनीज विच आर close to 12-14% of my portfolio. Then there are some companies which are barely 4-6% of my portfolio. But typically I tell beginners या फिर जो भी मार्केट में एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं कि आपको 2-4-6-8 स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए. व्हाट इज 2-4-6-8 स्ट्रैटेजी? कि आपका हाईएस्ट कन्विक्शन वाला स्टॉक 8% ऑफ पोर्टफोलियो होना चाहिए एट कॉस्ट. जिसमें थोड़ा कन्विक्शन कम है, रिस्क ज़्यादा है, वो 6% होना चाहिए. जिसमें आप अभी फुट इन द डोर लेके आए हैं, जहाँ पे अभी आप असेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे 2-4% होना चाहिए, राइट. कि आप अभी देख रहे हैं उस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, आप उस बिजनेस बारे में सीख रहे हैं. एंड ऑल्सो इसका एक और वेरिएशन क्या है, दैट इज 6-8-10 और 8-10-12. जो लोग ज़्यादा एक्सपर्टीज आ जाती है, जिन लोगों को कॉन्सेंट्रेट करने में मज़ा आता है, तो वो 8-10-12 भी कर सकते हैं, कि जिसमें आपको कन्विक्शन ज़्यादा है तो आप 8% मिनिमम डालिए, फिर 10% डालिए और 12% डालिए. बट वन ऑफ द श्योरेस्ट वे टू सर्वाइव इन द मार्केट इज यूजिंग 2-4-6-8 स्ट्रैटेजी. देन व्हेन यू बिकम मोर कंफर्टेबल, देन गो फॉर 6-8-10 एंड देन फाइनली 8-10-12. तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप साइजिंग कंट्रोल कर सकते हैं. यू कैन प्ले एन नंबर ऑफ स्टॉक्स, चाहे आप साइक्लिकल ले रहे हैं, चाहे आप गुड बिजनेस ले रहे हैं, चाहे आप हेडविंड्स वाले ले रहे हैं, चाहे आप एकदम पीक मोमेंटम वाले स्टॉक्स ले रहे हैं. यू कैन प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज. इफ़ यू अंडरस्टैंड इज दैट की साइजिंग है खास, बाकी सब बकवास. आपको अपनी एलोकेशन ऑफ पोजिशंस पे ध्यान देना है. दीज आर द थिंग्स एज एन इन्वेस्टर दैट यू कैन कंट्रोल. एंड वॉट यू कैनॉट कंट्रोल इज दैट की बीजेपी कितनी सीट जीतेगी, कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी, आम आदमी पार्टी कितनी सीट जीतेगी, आंध्र प्रदेश में क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में क्या हो जाएगा. बट इन चीज़ों में मसाला बहुत बढ़िया रहता है क्योंकि इनमें बात करने में दीज आर वेरी गुड टेबल टॉपिक्स.
but it is something that you cannot control. So what's the point of predicting nifty movements and actually tying back the rationale to कि what is going to happen politically because someone is predicting in the market, चाहे वो सट्टा बाजार कर रहा हो, चाहे वो कोई ट्विटर के ऊपर कर रहा हो. Because these are things which are difficult to predict, right? You can always get a wave, you can always get a sense. But again, you are supposed to have an opinion, but do not act as if it's right. Focus on the things that you can control. आप नहीं कंट्रोल कर सकते कि रशिया का प्रेसिडेंट यूक्रेन में वॉर करेगा नहीं करेगा. आप नहीं कंट्रोल कर सकते कि इजराइल और ईरान की वॉर कब बंद होने वाली है, राइट? सो सम ऑफ द थिंग्स विल ऑलवेज बी आउटसाइड योर कंट्रोल. सो अगेन लेट्स पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आई विल ओनली फोकस ऑन द थिंग्स विच आई कैन कंट्रोल. तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि आजकल मैं बहुत नॉइज देख रहा हूँ ऑल जगह, बहुत सारी मेरे पास ईमेल्स भी आ रही है बिकॉज अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स आर फोकसिंग ऑन थिंग्स विच दे कैनॉट कंट्रोल. If you love this video, do share this video with your fellow retail investors and do let me know in the comment section below कि इस वीडियो से आपकी क्या की लर्निंग्स थी. जय हिंद.